Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, and today we'll start chapter number 4 from Unit 1, that is communication skill. And the name of this chapter is Basic Writing Skill. In the earlier classes, we have discussed about communications, various methods of communications, and perceptives too. Under the various methods of communications, we have discussed about verbal communication, non-verbal communication and visual communications. ठीक है? And under the verbal communication there are two types of verbal communication in which we use the words when we are using or delivering the words and transmission of the words is taken places, then that is called as a verbal communications. ठीक है? And if we are using a oral method, means a sub part of the verbal communication is a oral. So in a oral methods of verbal communication, what simply we do, we speak out the words, we speak out the sentences. But the second parts we are covering today, that is written methods of verbal communication, yeah, written communication under the verbal communication. Okay, under this we'll learn about that how you transfer your informations to the other person in written form only. Are you getting my point? I told about the means of communication is to transmission the information from one person to another person. So there is a multiple way to transfer the information and a multiple things that affect the communications. तो earlier we have discussed about कि verbal communication क्या होता है and how in a verbal communication we transfer the information from one place to another. तो उसमें हमने बात किया था कि वी स्पीक आउट द वर्ड्स, जो भी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, दैट वी जनरली स्पीक आउट. Today in this period or in this video, we are going to discuss about how and what are the basic requirement to make a effective written verbal communications. We will discuss all the things that we have to keep in mind during written verbal communications. ठीक है? As we know that in our oral verbal communications we simply speaking a lot of things, तो उसके some different factors are there that we have earlier discussed. तो अब written में ऐसे कौन सी चीज़ें हो सकती हैं that are necessary for making a healthy or effective communications. ठीक है? healthy और effective verbal communication को बनाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हैं वो इफेक्टिव हो सकती हैं. ठीक है? सो यू सिंपली सी द स्क्रीन ओवर देयर. देखिए, रिटन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशंस. ठीक है? देखिए, फर्स्ट थिंग आई टोल्ड अबाउट कि कहाँ पर रिटन आई हैव मेड अ कंपैरिजन बिटवीन द रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन इन अर्ली क्लासेस. तो आई टोल्ड अबाउट दैट द लीगल इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज बी इन अ रिटन फॉर्म, because when you give anything in a written, it means it will be as a proof that the particular person is providing the consent for you. Verbal communication, sometimes the people has been mismatched or sometimes the people has denied that they haven't spoken this word. But if it's in a matter of written communications, so written communication के cases में क्या होता है, you simply give a authentication and a consent, and it can be considered under the legal practice too. So that's why the written communication is very effective mode of communication. It is more formal and less flexible than the oral communication. देखिए, it's formal too, but it's not flexible. In a oral communication, you can speak in any ways, but in a written communication, you must know the knowledge of grammar. For an example, a person, एक person है जो बिल्कुल illiterate है. ठीक है? अब वो इलिटरेट होने की वजह से ही और शी डू नॉट नो दैट हाउ टू राइट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी और इंग्लिश, दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स. लेकिन उसके बावजूद भी वो वर्बल कम्युनिकेशन कर लेता है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज की ग्रामेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है. आप खुद सोच लीजिए, एक ऐसा पर्सन, द पर्सन हु इज अनएजुकेटेड कैन इजीली मेक द ओरल वर्बल कम्युनिकेशन. सो दैट हैज बीन सेड इट इज फॉर्मल. इट इज़ मोर फॉर्मल. फॉर्मल मोर है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल है कि एनीबडी कैन डू इट. बट द रिटन कम्युनिकेशन need a good in knowledge of grammatical errors and others thing about the language. If you are knowing the language well, then you can write in a good effective way. In this chapter we'll discuss about that how you can make a effective writing method, कि आप कैसे एक effective writing
तरीके को बना सकते हैं और कैसे आप किसी भी चीज़ को एक इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं फॉर एन अदर पर्सन्स टू। ठीक है, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द मेथड्स। तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जो हम लोग पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जैसे हमने डिस्कस कर लिया ओरल मेथड। द रिटन फॉर्म इज हेल्पफुल इन कीपिंग अ रिकॉर्ड of a conversation for the future references. The effectiveness of the written content depend on the correct choice of word, their origination into the right sentences sequence and the कोहेंसिवनेस इन द सेंटेंसेस। देखिए, अब रिटर्न वेज में अगर आप बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे मैंने आपको अर्लियर बता दी कि रिटर्न के लिए आपके पास ग्रामर की अच्छी नॉलेज होने की ज़रूरत होती है। If you are having a good knowledge of the grammar, then only you can make a effective written communication. तो देखिए यहाँ पे एक लाइन कह रही है, the effectiveness of the written content depend on a correct choose of word. इफेक्टिवनेस किस पे कंटेन करते हैं कि आपका जो चॉइस होनी चाहिए वर्ड्स की वो करेक्ट होनी चाहिए। देखिए, सिमिलर वर्ड्स मेक अ सेंस, सेम सेंस के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को कहाँ पर किसको यूज करना है दैट यू हैव टू चूज। तो यू डिपेंडिंग ऑन द करेक्ट चॉइस ऑफ द वर्ड्स, देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू द राइट सेंटेंसेस। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हमने जंबल वर्ड्स को मेंशन कर दिया, तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी सेंस टू एनी ऑफ द पर्सन। सेंस देने के लिए उन सारे जम्बर्ड वर्ड्स को एक स्पेसिफिक रूल के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, एंड दैट स्पेसिफिक रूल इज नोन एज ए ग्रामेटिकल रूल। और जब वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज हो जाएगा तो जो बन के आएगा उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। इसके अलावा है कोहिंसिवनेस इन द सेंटेंसेस। शॉर्ट्स एंड क्रिप्स सेंटेंस शुड बी अडॉप्टेड। अब देखिए, 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन वी विल डिस्कस अबाउट। आप यहाँ पे देखेंगे 7 C's क्या है जिनको हमें अपने माइंड में रखना है ड्यूरिंग द मेकिंग अ रिटन कम्युनिकेशंस। सो दीज आर द 7, आप कह सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ द इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशंस है। each and every points or the you can say each and every point is very much important, which popularly known as the 7 C's of communication. देखिए, they are regarded as a checklist that help to improve the professional communication skill and increase the chance that the message will be understood in exactly the same way as it was intended. अगर आप इन सारी चेकलाइन देखिए, इट्स दीज ऑल 7 थिंग्स आर चेकलिस्ट है कि आप व्हेन यू आर मेकिंग एनी ऑफ द पैराग्राफ और एनी ऑफ द लेटर्स or any articles, just make that you have done this thing or not, make a checklist for that, so that as you want to deliver on the same way the people or the receiver will understand। जैसा आप भेजना चाह रहे हो या जो आप कहना चाह रहे हो उसको उसी तरीके से पर्टिकुलर पर्सन समझेगा, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली फॉलो अप करते हैं ड्यूरिंग द रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, सो वी विल सिंपली explain each and every point. The first and the most important point is clear. The message shouldn't be vague or confusing. देखिए, एक यूनिवर्सल लॉ होता है कि अगर हम किसी भी चीज को ट्रिकी बनाते हैं सो इट बिकम अनअंडरस्टेबल। समवेयर वी नीड टू मेक अ सेंटेंसेस वेरी मच ट्रिकी। अगर हमें चाहिए तो हम मोस्ट प्रोबेबली राइट इन अ सिंपल सेंटेंस, डोंट गो फॉर द कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगर आप मैक्सिमम अपने कंटेंट में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करते हो या ट्रिकी वर्ड्स को यूज करते हो, सो इट बिकम vague and confusing. The people get confused at what exactly you want to say. And here you are not physically present in front of the people or virtually present in front of the people. You have drafted your message that I want to say. So whatever you want to say, it is being understood by reading your message only. And if your message is confusing, the person will not get exact information that you want to deliver. So therefore it is very much important to keep an eye on these points. तो first things है, use simple and short sentences. Short sentences का use करिए, बल्कि और lengthy paragraph मत बनाइए। Complex sentences को less use करिए, compound sentences को less use करिए, use simple sentences. Next one, correct. The message should be free of any grammatical error.
and spelling mistake. Also, the fact mentioned in the message must be relevant and accurate. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, करेक्शंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक सिंपल सा सेंटेंस है, मैंने अगर इज की जगह वॉज लगा दिया तो पूरा सेंस एक टेंस की जगह पर, एक पोजीशन की जगह पर दूसरे पोजीशन पे पहुंच गया. तो ग्रामेटिकल एरर इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, आई नो इट वेरी वेल, बट उनको परफेक्टली और एक्यूरेटली यूज करना चाहिए. अगर आप सेंटेंसेस में प्रॉपर ग्रामर का यूज नहीं करते तो एक छोटी सी ग्रामर की मिस्टेक भी पूरे सेंटेंस के सेंस को या पूरे कंटेंट के सेंस को खत्म कर सकते हैं. So you have to be keep an eye on these things, and there shouldn't be spelling mistakes. अगर आप किसी भी वर्ड्स को लिख रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो वर्ड्स आप कहना चाह रहे हो एग्जैक्ट वो वर्ड्स समझ आएगा ही नहीं, because you have written the wrong spellings. So you should enrich your vocabulary and grammatical errors to resolve that particular problem. Next है complete. देखिए the message should be complete. That is, it must include all the required information. अब it shouldn't be a phrase, it shouldn't be a clause. जैसे मैंने कहा कोई भी एक सेंटेंसेस कह दिया तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस होना ज़रूरी है. एक फ्रेज और एक क्लॉज नहीं होना चाहिए जो अपने आप में इनकम्प्लीट सेंस निकालते हैं या अपने सेंस के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं. और अगर आप उनको यूज़ भी कर रहे हैं तो जो उनके डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं दैट यू शुड यूज टू, आपको उनको भी यूज़ करना चाहिए. अरे गेटिंग माई पॉइंट. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो उसको लिखने के केसेस में या मैंने कोई भी जब सेंटेंसेस लिखा है तो उस सेंटेंस व्हेन आई एम राइटिंग तो इट शुड बी अ कंप्लीट इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक शॉर्ट सेंटेंस लिख दिया जिसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है. देखिए इट मस्ट इंक्लूड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. द कंप्लीट मैसेज आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट रिसीवर माइट हैव, दस रिड्यूसिंग द नीड्स ऑफ फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस. ठीक है, अगर आपने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को पेश किया है तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन रिवर्स ऑफ दैट, बिकॉज व्हाटसोएवर यू वांट टू डिलीवर टू द पर्सन he will not get in exact way as you want, so the problem will be there only. ठीक है, तो it should be completed. The next is concrete. That's very much important. The content should be supported by the fact and figures. Suppose if you are going to write any of the article, जैसे मान लो मैं सपोज स्पेस पे आर्टिकल लिखना चाहता हूँ या मैं सपोज अर्थक्वेक पे आर्टिकल्स लिखना चाहता हूँ, so I should mention some few fact and figures too. व्हेन आई एम गोइंग टू राइट एनी ऑफ द आर्टिकल्स तो मैं क्या करूं, पहले अपनी रिसर्च करूं और उस रिसर्च में कहीं पर अर्थक्वेक आया है, रियल स्टोरीज को पिक करूं, वहां से कुछ फैक्ट फाइल्स को, कुछ पिक्चर्स को, कुछ फिगर्स को पिक करके मेंशन करूं. सो इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल. So it show that you have made a lot of research before making your रिटर्न कंटेंट. ठीक है, तो इट शुड बी कंक्रीट. कंक्रीट का मतलब आपको आपस में बनाने से पहले उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट फाइल्स है, जैसे मान लो अगर मुझे कोई क्वेश्चंस का आंसर देना है या कोई भी सेंटेंसेस का आंसर देना है या कुछ भी ऐसा है जिसमें मुझे फैक्ट फाइल मिल सकती है. जैसे एग्जांपल अगर मैं मान लो गवर्नमेंट के बारे में बात करता हूँ तो मुझे करंटली गवर्नमेंट की बहुत सी फैक्ट फाइल मिल जाएंगी कि करंटली हु इज इन अ रूलिंग गवर्नमेंट, हु इज इन अ ऑपोजिशन गवर्नमेंट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर. तो दीज ऑल आर द फैक्ट फाइल दैट करंटली हैपनिंग कि इस ईयर में कौन है क्या नहीं है. इसके अलावा जैसे आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ अर्थक्वेक तो मुझे रियल वाइज में आ गया. इसके अलावा अगर मैं अगर कोई और कोई अटैक की बात करता हूँ या किसी की भी आर्टिकल्स फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, सो फर्स्ट वी मेक अ प्रॉपर रिसर्च, collect the necessary information, necessary picture, and then just you can say manufacture this. एक एग्जांपल आप स्मॉल स्मॉल चीजों को पिक करिए और उसके बाद एक अच्छी सी बिल्डिंग बना दीजिए. दैट मीन्स फॉर दैट कंक्रीट करना, कैसे छोटी छोटी चीजों को, फैक्ट्स फाइल को हमें कहाँ पर मेंशन करना है, दैट शुड बी इन अ दैट. फिर है कॉन्साइज. कॉन्साइज क्या होना चाहिए, कंसाइज क्या है, देखिए the message should be precise and to the points. A short and the brief message help to retain the receiver's attention and save the time. बहुत इंपॉर्टेंट है कंसाइज. कैसे कंसाइज करेंगे मैसेज को, इट शुड नॉट बी वेरी मच बल्कि, प्रेसाइज होना चाहिए. जो चीजें हमें बोलनी है, जिस चीज को अप टू द पॉइंट होना चाहिए. जैसे अगर मुझे बोलना है कि टुमारो इज हॉलीडे इन एग्जांपल के लिए, तो वो अप टू द पॉइंट, ये नहीं होना चाहिए आई जस्ट मेक अ होल स्टोरी एंड देन एट लास्ट आई शो दैट व्हाई आई वांट टू से दिस. नो,
Most of the time we are talking about the message here only. अगर वो डिस्क्रिप्शन की बात आती है देन यू यूज द स्किल, जितना एक्सपैंड करना है एक्सपैंड इट, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मैसेज। तो मैसेज शुड बी कंसाइज, इतना प्रिसाइज होना चाहिए कि अप टू द मार्क होना चाहिए, और एक लाइन में, और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, कंसीडरेशन। The sender must take a consideration that the receiver's opinion, knowledge, mindset, backgrounds, etc. to communicate effectively. कंसीडरेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मैंने इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द परसेप्टिव्स, सो वी हैव डिस्कस दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीन्स ऑफ परसेप्टिव मीन्स होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अपने माइंड में क्या इमेज बना रहे हो। So if a receiver do not have a good image of you, तो he or she will not exactly understand that you want to deliver. एक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेरी किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में क्या इमेज है, तो मेरे मैसेज को वो मेरी इमेज के हिसाब से ही समझेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो द कंसीडरेशन ऑफ द मैसेज विल बी एज पर द इमेज ऑफ द पर्सन। तो ओपिनियंस, किसी भी पर्सन के क्या ओपिनियन हो सकते हैं। अब हम, मुझे लगेगा अगर किसी ने अपना ओपिनियन दिया है मैसेज के फॉर्म में, कहूँगा इसको तो इसको कुछ आता नहीं है, तो ये विच काइंड्स ऑफ द ओपिनियन द पर्टिकुलर पर्सन कैन गेट, ही और शी इज डू नॉट हैव अ नॉलेज, या मेरा माइंडसेट है कि उसको कुछ आता ही नहीं, तो वो मुझे क्या मैसेज डिलीवर करेगा, तो मैं उसके मैसेज में से जो एग्जैक्ट सेंस है उसको समझूंगा ही नहीं। तो कंसीडरेशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट इट इज फॉर द रिसीवर साइड, नॉट फॉर योर साइड। आप अपना कंसीडरेशन नहीं कर सकते हो, दूसरे पर्सन ने जैसा भी आपका परसेप्टिव्स बना रखा है वो आपके मैसेज को उसके हिसाब से ही समझेगा, वो अपने हिसाब से नहीं। आर यू गेट माई पॉइंट? ओके, द सेवेंथ एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉटेशियस। कॉटेशियस क्या होते हैं? कॉटेशियस क्या होते हैं? देयर सेंडर मस्ट कंसीडर द फीलिंग एंड व्यूज ऑफ द रिसीविंग एंड वाइल ड्राफ्टिंग द मैसेज। ठीक है, तो ये है कि व्हेन यू आर डिलीवरिंग योर मैसेज, जस्ट ड्राफ्ट योर फीलिंग्स इन द मैसेज टू। कर्टसी दिखाइए अपनी, कर्टसियस बनिए। आप कैसे अपनी फीलिंग्स को अपने मैसेज में डाल सकते हैं? जस्ट फाइंड आउट द वे, बी अ क्रिएटिव राइटिंग दिस। कैसे आप कर्टसी अपनी डाल सकते हैं, कैसे आप अच्छी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, कहाँ पर आप सॉरी बोल सकते हैं, कहाँ पर आप इमोशंस के फॉर्म में एपस्ट्रॉप्स के फील सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, सॉरो दिखा सकते हैं, हैप्पीनेस दिखा सकते हैं। ठीक है, मीन्स व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, यू आर फीलिंग टू डिलीवर द मैसेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या फील कर रहे हो मैसेज डिलीवर करने के टाइम पे। सपोज आप किसी को एक अच्छी खबर देना चाह रहे हो, तो आपके शब्दों में भी वो जो आपका एक्साइटमेंट है दैट शुड बी शोन इन द इन योर वर्ड्स टू, देन इट बिकम अ इफेक्टिव मैसेज। ठीक है, सो आई थिंक ऑल दिस 7 points आर क्लियर। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम regarding any of the point or any of the things, there is a comment box, kindly comment on comment box too, so that when I check ki who's having a problem, so in the next video I can resolve the problem. Okay, thank you very much. In the next video we'll discuss about the few of the more topic, that is writing skill क्या है, phrases क्या हैं, आगे के further videos में we will discuss for that. ठीक है, okay, thank you very much.